سنیم منارئی اللہ اکبر بھی زنم دمزہ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر بھی زنم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نارئی غوث اعظم بھی زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی بے حق خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا معین الدین چشتی۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر پوری کائنات کے مرکز عقیدت سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں مالک ہفت آسماں تتمہ دور زماں فخر آدم و بنی آدم اللہ کے محبوب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، اس وقت کے حالات کیا ہے وہ ہم اور آپ خوب جانتے ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اس وقت حالات کیا ہیں۔ ہر مسلمان اس بات سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے کہ اس وقت حالات کیا ہیں اور دشمن مخالفین مسلمانوں کو لے کر کے کن کن تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو لے کر کے ان کے ذہن و دماغ میں کون کون سی باتیں ہیں۔ حضرات گرامی، یہ فتنے کا دور ہے اور ایک وہ فتنہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کے فقط جان اور مال کا نقصان ہوتا ہے، مگر یہ فتنہ جو اس دور میں چل رہا ہے اس سے فقط آپ کے جان اور مال کو نقصان نہیں بلکہ آپ کے سیدھے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کے عقائد و نظریات پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کے جان ایمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ دشمن کبھی عظمت قرآن کو اچھالنے کی کوششیں کر رہا ہے، کبھی خدائے وحدہ قدوس کی ذات پر دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، تو کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے لوگ کھیلنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ایسے وقت میں کہ جب کچھ ایسے لوگ جنہیں یہ تمیز نہ ہو کہ ان کے پینے کے لیے کیا اللہ نے بنایا ہے اور ان کے کھانے کے لیے کیا اللہ نے بنایا ہے، کون سے پانی کا پینا حرام ہے اور کون سے پانی کا پینا حلال ہے، کس چیز کا کھانا حرام ہے کس چیز کا کھانا حلال ہے، وہ لوگ بھی چند پیسوں کے لیے، نام و نمود کے لیے، سستی شہرت کے لیے میدان میں آتے ہیں اور مسلمانوں کو، اسلام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو، قرآن پاک کو ٹارگٹ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، انہیں چھیڑنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن اتنے ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتا
آج بھی ہم خواب خرگوش کی مستی میں سو رہے ہیں۔ حضرات گرامی، تمام فتنوں کا جو سد باب ہے اسے تلاشنے کی ضرورت ہے۔ جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں سے مقابلہ کیسے کیا جائے گا، ان فتنوں سے لڑنے کے اسباب و عوامل کیا ہوں گے، قوم کو، امت کو ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری قوم نہ عملی میدان میں کامیاب ہے اور نہ ہی علمی میدان میں کامیاب ہے۔ دونوں میدان ہمارے یہاں 0/سناٹا ہے، اور دونوں میدان سے ہم ایک دم لا علم ہو چکے ہیں، نا آشنا ہو چکے ہیں، اور کسی بھی قوم کو ترقی کرنے کے لیے، کسی بھی قوم کو اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کے لیے، کسی بھی قوم کو اپنے بچاؤ کے لیے دو چیزوں کا اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ ایک تو علم کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا اس کے اعمال کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کا تعلق جو ہے وہ علم سے بھی مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا تعلق جو ہے وہ عمل سے بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر سب سے پہلے اللہ کے جس کلام کی تلاوت کی ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اور قوم کو یہ پیغام دیا ہے، اے لوگو، اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو دنیا کے علمی میدان میں تمہیں اتر کر کے اور مخالفین کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے تمہیں یہ جواب دینا ہوگا کہ یہ قوم جو ہے یہ جاہلوں کی قوم نہیں ہے، بلکہ اس پیغمبر کی قوم اور امت ہے جس نے سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا سبق اور پیغام دیا ہے۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا تب کامیابی کی طرف بڑھو گے۔ آج قوم کا تعلیمی معاملے میں کیا حال ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی خوب اچھے سے جانتا ہے۔ قوم کا جو دوسرا پہلو ہے اس پہ آپ غور کریں تو عملی میدان میں کیا حال ہے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہو اور اس دن جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جائے تو دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، اپنے خرید و فروخت کو روک دو، اپنے تجارتوں کو بند کر دو۔ لیکن مسلمان کا حال کیا ہے، قوم مسلم کس طرف جا رہی ہے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ جمعہ کے دن کو بھی ہم نے اہمیت نہیں دیا۔ ہفتے میں ایک دن ہمیں ملتا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے، اس ایک دن بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ اس ایک دن میں بھی ہم نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اس ایک دن میں بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس ایک دن بھی ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آئے اور اپنے رب سے دعائیں کریں۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں آپ کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، آپ کس کے لیے بھی اپنی جان قربان کر دیں، آپ کس کے لیے بھی محنتیں کر ڈالیں، لیکن کفر ملت واحدہ، کفر جو ہے یہ ایک ملت ہے، یہ سب کے سب ایک ہے، آپ ان کے لیے کچھ بھی کریں مگر یہ وقت آنے پر سب کے سب ایک ہو جائیں گے اور آپ کو تن تنہا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب مصیبتوں میں آپ کو جو تنہا نہ چھوڑے وہ آپ کا پروردگار ہے، آپ کو جو تنہا نہ چھوڑے وہ آپ کے نبی ہے، تو نبی اور خدا سے آپ کا رشتہ جو ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر نبی اور خدا سے آپ کا رشتہ کمزور پڑا، اگر نبی اور رسول سے آپ کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے تو یاد رکھیے دنیا میں آپ کے لیے سربلندی نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی آپ کا مقدر
मुकद्दर बन जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो कौमें हमेशा जो है तनज़्ज़ुली की तरफ जाती है, जो अपने असलाफ के तारीख को भुला देती है, जो अपने असलाफ के तरीकों को भुला देती है, मगर वो कौमें हमेशा तरक्की पर होती है जो अपने असलाफ को याद रखती है, जो अपने अकाबिरीन की तारीखों को याद रखती है। अरे तुम ही तो वो हो जिनके बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, कभी तपते हुए सहराओं में, कभी यूरोप के कलीसाओं में हमने ही तो आज़ानें दी थी। लेकिन आज हाल क्या है, कलीसाओं में नहीं जाना है, तपते हुए सहराओं में नहीं जाना है, आज मस्जिदों में जाना है, जहां एसियां लगी हुई है, जहां पंखे का इंतजाम है, जहां आपके लिए मोटी मोटी कालीनें बिछी हुई है। उसके बावजूद जो है कौम का नौजवान सरमस्तियों में फिर रहा है, उसके बावजूद जो है कौम का नौजवान अपने परवरदिगार के घर की तरफ रुजू नहीं करता है। उसके बाद हम कहते हैं परेशान है, उसके बाद हम कहते हैं परेशानियां हमारा मुकद्दर बन चुकी है। जब हम कहते हैं परवरदिगार हमारे हालात को देख, तो आवाज आती है अपने नामे अमाल को देख। मेरे अजीजों, गौर करने का ये मकाम है कि ऐसे दौर में हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं जिस दौर में दुश्मन हमें सांसें लेने पर भी मजबूर कर रहा है, हमारी सांसों को तंग किया जा रहा है, हमारे जो है औकाफ की जमीनों पर हमला किया जा रहा है। उसके बावजूद जो है हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। अल्लाह तबारक व तआला के घर से 5 वक्त मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं जाते हैं। अगर हमें कोई आदमी कह दे कि फला जगह आप चले जाइए, वहां जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे, हम वहां जाने के लिए बेकरार हो रहते हैं, हम वहां जाने के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन अल्लाह के घर से 5 वक्त मुअज्जिन कह रहा है आओ कामयाबी की तरफ, जिसमें कोई शक व शुबहा नहीं है, अल्लाह ही कामयाबी अता फरमाता है। उसके बावजूद मुसलमान जो है वो कामयाबी से मुंह मोड़ रहा है, उसके बावजूद मुसलमान जो है कामयाबी से दूर भाग रहा है। ऐसे आलम में जब दुश्मन आपका ताक़ुब कर रहा हो, ऐसे आलम में जब दुश्मन आपके जान और माल का दुश्मन जो है दुश्मन बन चुका हो, ऐसे आलम में जब मुखालिफ आपकी जिंदगी को आप पर तंग कर रहा हो, ऐसे आलम में जब मुखालिफ आप पर जो है जिंदगी जीने के रास्ते बंद करने की कोशिशें कर रहा हो, तो ऐसे आलम में आपको करना क्या है? ऐसे आलम में आप किसका सहारा लेंगे? ऐसे आलम में आपको किसके पास जाना है? तो कुरान पाक से पूछो कि कुरान तू बता, ऐसे आलम में जब दुश्मन हमारा पीछा कर रहा हो, ऐसे आलम में जब दुश्मन हमारा ताक़ुब कर रहा हो, ऐसे आलम में जब दुश्मन हमें अपने तर्ज़े अमल पे ढालने की कोशिशें कर रहा हो, तो ऐसे आलम में हमें करना क्या चाहिए? मक्का शरीफ की सरजमीन को आप देखें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया था, अहले मक्का ने यही कहा था, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे दीन में आ जाए, आप हमारे दीन में आ जाए, हम आपके साथ है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं, मैं तुम्हारे दीन में कैसे आ सकता हूँ? तुम्हारा दीन तो बातिल है, जो दीन मैं लेकर के आया हूँ यही दीन सच्चा और हक है। उस वक्त दुश्मनों ने नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का की सरजमीन को तंग कर दिया था, और सरकार जब हिजरत करके तशरीफ ले जा रहे थे, हज़रात गिरामीउल मर्तबा जब नबी अकरम अलैहिस्सलाम हिजरत के लिए घर से निकलते हैं, तो उस वक्त मक्का के नौजवानों ने सरकार के घर को चारों तरफ से घेर रखा था। उस वक्त सरकार के घर के सामने नंगी तलवारें लेकर के नौजवान खड़े थे। पैगंबर जमीन से मिट्टी उठाते, कंकर उठाते हैं और सूरह यासीन शरीफ की एक आयत तिलावत करते हैं और उनके सरों पर फेंक देते हैं, तो जो बीना थे वो नाबीना हो गए, जो आंख वाले थे वो अंधे हो गए। जनाब सिद्दीक़ अकबर को लेकर के नबी पहुंचते हैं, गार के करीब जब पहुंचते हैं, यहाँ एक नुक्ता समझिए आप, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है इस हुमा फिल गार सानियस नहीं हुमा फिल गार, दो में से दूसरा जब गार में जाता है, हजरात गिरामी दो में से दूसरा जब गार में जाता है, यहाँ काबिल गौर एक बात है आयत में कि दो में से दूसरा जब गार में जाता है, नबी तो पहले है, अबू बकर सिद्दीक बाद में है, और
اور दो में से दूसरा जो कहा है, इससे मुराद नबी ही की जात है कि दो में से दूसरा जब गार में जाता है, होना तो ये चाहिए था कि मुस्तफ़ा तुम पहले हो, अबू बकर बाद में है, तो पहले तुम्हारा जिक्र होना चाहिए था, अबू बकर का जिक्र बाद में होना चाहिए था। लेकिन अल्लाह फरमाता है जब दो में से दूसरा गार में जाता है, तो हजरत गिरामी गार में जो पहले गया वो जनाबे सिद्दीक़ अकबर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और जो बाद में जाता है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। गार में पहले जाने में सिद्दीक़ अकबर है और बाद में जाने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसे कुरान ने बयान फरमाया है। आखिर पहले जनाबे अबू बकर सिद्दीक क्यों गए, मुस्तफ़ा साथ में क्यों नहीं गए? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे और पीछे चारों तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक चक्कर लगाते थे, कभी आगे जाते थे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी पीछे। नबी ने पूछा अबू बकर क्या बात है, चारों तरफ घूम क्यों रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, अब मैं ये सोचता हूँ कहीं दुश्मन सामने से ना हमला करे, इसलिए मैं आगे चला जाता हूँ। दुश्मन फिर ख्याल आता है पीछे से ना आ जाए, इसलिए मैं पीछे चला जाता हूँ। फिर ख्याल आता है दाएं बाएं से ना आ जाए, इसलिए मैं दाएं और बाएं हो जाता हूँ। हजरत गिरामुल मर्तबत गार में पहले सिद्दीक़ अकबर जाते हैं और उसके बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत जाते हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला अपने हिकमत से एक बात समझाना चाहता है बंदों को, ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हारे दिल में कोई खतरा होगा और दिल साफ नहीं होगा, तो उस दिल को साफ करने के लिए पहले अबू बकर होंगे, बाद में मुस्तफ़ा होंगे। अबू बकर पहले, बाद में मुस्तफ़ा। जहां अबू बकर नहीं वहां मुस्तफ़ा नहीं। इसलिए अगर चाहते हो कि दिलों को साफ करो तो पहले अबू बकर की मोहब्बत हो, फिर बाद में मुस्तफ़ा की मोहब्बत हो। पहले अबू बकर जाएंगे, उसके बाद मुस्तफ़ा जाएंगे। आयत का दूसरा पहलू, दूसरी आयत का देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक गार में नबी को अंदर बुला लिया। अब सरकार तशरीफ ले गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सरे मुक़द्दस को हजरत सिद्दीक़ अकबर के गोद में रखा, और जब गोद में रखा, हजरात अपनी जात के लिए, अपने आप के लिए अगर आदमी को कोई डर होता है तो उसे खौफ कहते हैं, और अगर महबूब के जात के लिए कोई डर हो तो उसे खौफ नहीं कहते, उसे गम कहते हैं, उसे हुज़्न कहते हैं। सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, अगर दुश्मन दरवाजे से गार के मुंह से अपने पैर की तरफ भी देखता है तो आप उसे नजर आ जाएंगे, दुश्मन हमें देख लेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर गम ना खाओ, अबू बकर गम ना खाओ, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। हजरत गिरामी, यहाँ एक बात और काबिल गौर है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, माना जो है ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया अबू बकर गम ना खाओ, अल्लाह मेरे साथ है, नहीं, बल्कि नबी फरमाते अबू बकर गम ना खाओ, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। गोया कि नबी ने ये बताया, ऐ लोगों, मुस्तफ़ा ने अबू बकर को जब जुदा ना किया तो तुम कौन होते हो जुदा करने वाले? जब नबी ने अबू बकर को अपने साथ भी रखा और खुदा के साथ भी रखा तो तुम कहाँ कौन होते हो अबू बकर को मुस्तफ़ा से जुदा करने वाले? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गार में, हज़रत अबू बकर अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गार चारों तरफ से पैक है, चारों तरफ से पैक है, आने का रास्ता एक ही है, जाने का भी रास्ता एक ही है। सरकार, अगर दुश्मन दरवाजे से गार के अंदर दाखिल होता है तो हम जाएंगे किधर से? होता यह है कि हजरात एक तरफ से आदमी आता है, अगर दूसरा रास्ता है तो कोई हमला करे तो दूसरे रास्ते से निकल जाए, होता है कि नहीं होता? लेकिन गार यहाँ पैक है, चारों तरफ से रास्ता एक ही है, और दुश्मन जब उस रास्ते की तरफ से आएगा तो या रसूलल्लाह हम जाएंगे किधर? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने दस्ते नबूवत को उठाया और इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर दुश्मन इधर से आएगा, जिधर दरवाजा है तो हम इधर से निकल जाएंगे, और जैसे नबी ने कहा इधर से निकल जाएंगे, गार फट जाता है और जनाब सिद्दीक अकबर ने दरियाओं को देखा, नहरों को देखा, और हबशा की कश्तियां जो समंदर में तैर रही थी, अबू बकर ने उन्हें भी मुलाहिजा कर लिया। जब नबी गैर इरादी तौर पर अपने हाथ को उठा दे तो गार फट जाए, तो मुझे एक बात बताइए, जिस मक्के में पैगंबर ने मिट्टी डाला तो लोग अंधे हो गए, गार में हाथ उठा दिया तो फट गया, तो फिर 3 दिन और 3 रातें दुश्मन से इस गार में छुपने की वजह। जब पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पावर है, इतना इख्तियार है कि पैगंबर मिट्टी उठा के फेंके तो जो बीना है नाबीना हो जाए, पैगंबर गार में इशारा करे तो गार फट जाए, तो पैगंबर 3 दिन और 3 रात फिर उस गार में दुश्मन से क्यों छुप रहे हैं? मेरे अजीजों, आपने वाकया सुन रखा होगा, लेकिन इस वाकये के पीछे जो हिकमत रसूल और खुदा है उसे समझिए। पैगंबर गार में 3 दिन क्यों छुप रहे हैं दुश्मन से, और वो भी दुश्मन अंदर ना आए, अल्लाह ने मकड़ी का जाला लगवा दिया, कबूतरी से अंडा दिलवा दिया कि दुश्मन गार में ना आने पाए। अगर पैगंबर एक हुक्म करते तो जनाबे इस्राइल कसम खुदा की वक्त से पहले सबको मार डालते, वक्त से पहले सबकी रूह निकाल लेते, लेकिन अल्लाह ने 3 दिन तक उस गार में, 3 रातों तक उस गार में मुस्तफा को रखा क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में 3 दिन तक है। गार में न सूरज की रोशनी आ रही है, न चांद की चांदनी आ रही है। अब गार में 2 ही है, या तो मुस्तफा है या तो अबू बकर है, और तीसरा इन्नल्लाह ला तहज़न इन्नल्लाह माना, मुस्तफा ने कहा था खुदा हमारे साथ है। तो ये कहना पड़ेगा गार में सिर्फ 2 नहीं बल्कि तीसरा भी था, और तीसरा वो है जो परवरदिगार है, उसकी जात भी वहां मौजूद है। अल्लाह अपने दोनों महबूबों की हिफाजत कर रहा है। 3 दिन और 3 रात मुस्तफा जाने रहमत गार में है। आखिर दुश्मन से गार में जाने की वजह क्या है? तो मेरे अजीजों, वजह यह है कि अबू बकर गार में तुम 3 दिन और 3 रात मेरे साथ रहो, और अबू बकर 3 दिन तक मुस्तफा तुम्हें अपनी मारिफत अता करेंगे, मुस्तफा तुम्हें अपनी पहचान अता करेंगे। और अबू बकर 3 दिन तक अब यार फकत यार को देखेगा, किसी तीसरे को देखने की जरूरत नहीं है। अबू बकर 3 दिन तक तुम मुस्तफा को देखते रहो और मुस्तफा तुम्हें देखते रहे। लोग कहते हैं सिद्दीक अकबर कौन है? सिद्दीक जो है जो 3 दिन तक अपने महबूब को किसी और को देखने ना दे, उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। 3 दिन तक जनाबे सिद्दीक अकबर गार में रहे, और इस 3 दिन की सोहबत का असर क्या होता है? वहां से निकले, जब मदीना पहुंचे, बीच में बातें बहुत सारी हैं मगर वक्त नहीं। मदीना तैयबा में जब पहुंचे और लोग इस्तकबाल के लिए आए तो लोगों में कंफ्यूजन हो गई। कुछ कह रहे हैं ये नबी है कि ये नबी है। जिन्होंने सरकार को पहले से देखा था वो तो अंदाजे के मुताबिक नबी के करीब, लेकिन जिन्होंने देखा नहीं था वो कभी सिद्दीक अकबर को देखते हैं, कभी मुस्तफ़ा को देखते हैं, कभी सिद्दीक की तरफ, कभी नबी की तरफ। जनाबे सिद्दीक अकबर ने देखा कि लोग मेरी तरफ आ रहे हैं तो चादर को उतारा और नबी के ऊपर तान दिया धूप में, और कहा लोगों जो चादर के नीचे है वो आका है, और जो चादर तान के है वो गुलाम है मुस्तफा से। बाद में सिद्दीक अकबर पूछते हैं या रसूल अल्लाह, आखिर वहां लोग कंफ्यूज क्यों थे? नबी फरमाते हैं आए अबू बकर, अब तुम फना फिर रसूल की मंजिल में पहुंच चुके हो, और तुम्हारा मकाम ये हो चुका है कि तुम्हारा चलना नबी के मुशाबा हो गया है, तुम्हारा उठना नबी के मुशाबा हो गया है, तुम्हारी शक्ल जो है ये नबी के मुशाबे हो गई है। आए अबू बकर, 3 दिन की सोहबत में तुम्हें उस मकाम पर ला करके खड़ा
کر دیا ہے کہ مکے سے لے کر کے مدینے تک اور مدینے سے لے کر کے مزار تک اور مزار سے لے کر کے عرش تک اور عرش سے لے کر کے جنت تک تم میرے ساتھی رہو گے۔ 3 دن کی صحبت نے صدیق اکبر کو یہاں تک پہنچا دیا، اور حضرات ایسے نہیں پہنچایا۔ صدیق اکبر کا مقام بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت عقیل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مولا علی کے بھائی۔ حضرت عقیل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے کہ ہر معاملے میں یہ آدمی آگے آگے رہتا ہے، تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں چھیڑنے لگے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صدیق اکبر مسجد میں گئے اور پہلے صف میں بیٹھے تھے۔ بھائی قانون یہی ہے، جو پہلے آئے وہ پہلے بیٹھے، جو بعد میں آئے وہ بعد میں بیٹھے۔ حضرت عقیل پہنچے اور اندر تک مسجد میں داخل ہو گئے۔ صدیق اکبر سے فرمایا اٹھ جاؤ، کہا کھڑے ہو جاؤ۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، کہا پیچھے جاؤ، پیچھے جانے لگے۔ حضرت عقیل بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر پہلی چھوڑ کے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 7ویں صف میں پہنچ گئے۔ دیکھا 7ویں صف میں جگہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا شہزادے یہاں بیٹھنے کی اجازت ہو تو بیٹھ جاؤں۔ حضرت عقیل نے کہا بیٹھ جائیے۔ حضرت مولا علی نے دیکھ لیا تھا۔ نماز کے بعد حضرت علی نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقیل ابو بکر سے ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے۔ یہ جھگڑا وہ نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہوتا ہے، یہ محبت کا جھگڑا ہے، یہ عشق کا جھگڑا ہے، یہ پیار کا جھگڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عقیل نے کیا کیا؟ علی وہ مت بتاؤ، عقیل کے کرنے پر میرے ابو بکر نے کیا جواب دیا وہ بتاؤ، میرے ابو بکر نے کیا کہا وہ بتاؤ۔ حضرات گرامی، حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عقیل نے انہیں نہ پہلی صف سے اٹھا دیا تو وہ 7ویں صف میں چلے گئے اور جا کر کے کہا شہزادے اگر اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں۔ عقیل نے کہا بیٹھ جائیے، تو وہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ۔ حضرت صدیق اکبر رسول اللہ کے گھر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آج نماز میں جمعہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں؟ نبی فرماتے ہیں ابو بکر مجھے معلوم ہے۔ صدیق اکبر نے جو جملہ کہا، فرماتے یا رسول اللہ میں غلام اور عقیل تو آپ کا خون ہے، خون کا رشتہ ہے عقیل سے۔ یا رسول اللہ وہ آقا زاد ہے اور میں غلام زادہ ہوں، تو یا رسول اللہ آقا کے اولاد کو یہ حق حاصل ہے کہ غلام زادے کو جہاں چاہے وہاں بٹھا دے۔ اتنا صدیق اکبر نے کہا تو مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عقیل کو بلاؤ۔ حضرت عقیل آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیل تم نے کیا کیا آج؟ حضرت عقیل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عقیل بیٹھ جاؤ اور ابو بکر کے بارے میں سنو مجھ سے۔ اے عقیل جب پورے مکے کے لوگ میرے دشمن تھے تب صدیق نے ابو بکر نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا۔ اے عقیل سنو، جب میرے پاس کسی کا پیسہ آتا ہے تو میں اسے پرایا سمجھ کے خرچ کرتا ہوں، لیکن جب ابو بکر کا آتا ہے تو میں اسے اپنا سمجھ کے خرچ کرتا ہوں۔ اور اے عقیل سنو، ابو بکر وہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب سب جنتی جنت میں جانے لگیں گے میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا
اور रब की बारगाह में लेकर के जाऊंगा और कहूंगा परवरदिगार तूने सबका बदला दे दिया है, मौला मैंने सबका बदला दे दिया है, लेकिन ये अबू बकर ऐसा है कि जिसका बदला अभी तक मैंने नहीं दिया है। ऐ मेरे मौला तू इसका बदला अता फरमा दे। और सिद्दीक अकबर का मकाम ये है कि सारे जन्नती रब के जिस तजल्ली का दीदार करेंगे, अल्लाह ताला सिद्दीक अकबर के लिए तन्हा अलग से एक तजल्ली नाज़िल फरमाएगा और फरमाएगा अबू बकर तुम आम लोगों में नहीं हो, सबने एक साथ मेरे जलवों का दीदार किया है, तुम तन्हा मेरे जलवों का दीदार करते रहो, इसलिए कि तुम मेरे मुस्तफ़ा के यार हो, तुम मेरे मुस्तफ़ा के खलील हो, तुम मेरे मुस्तफ़ा के दोस्त हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में नबी ने फरमाया, ऐ अकील सुनो, मस्जिद नबवी की सबसे पहली जमीन जिस पर मस्जिद बनाई गई, उस मस्जिद के जमीन को जिसने खरीद करके अल्लाह उसके रसूल के लिए दिया है वो अबू बकर सिद्दीक है। और जिस जगह तुम बैठे हो ये जमीन भी अबू बकर सिद्दीक ने खरीद करके लिया है। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अहले बैत रसूल का इस तरह एहतराम करते हैं। आज कुछ लोग जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जात पर उंगली उठाते हैं। एक बात याद रखिए, सूरज पर थूकोगे तो थूक खुदा करके तुम्हारे मुंह पे ही गिरेगा, तुम्हारे चेहरे पर ही गिरेगा। अबू बकर सिद्दीक का तो कुछ नहीं बिगड़ता है। आखिरी बात अर्ज करके खत्म करता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने आकर के पूछा, कहा एक बात बताएं कि नबी की बारगाह में सिद्दीक अकबर का क्या मकाम है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ऐ पूछने वाले सुन, अबू बकर का मकाम मुस्तफ़ा की बारगाह में वो है जो इस वक्त तू देख रहा है, जो इस वक्त तेरे नजरों के सामने है। यानी नबी के कदमों में जो सोया है उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं, उसे अबू बकर कहते हैं। और जिस तरह से अबू बकर दुनिया में कदमे रसूल में थे, उसी तरह से मजार में भी अबू बकर कदमे रसूल में है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब मसला किसी ने पूछा था, कहा था हुजूर तलवार के ऊपर सोने की कढ़ाई करवाना जायज है क्या? हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते जायज है। उसने कहा दलील क्या है? आपने फरमाया दलील ये है कि सिद्दीक अकबर के तलवार पर सोने की कढ़ाई थी, अगर जायज ना होती तो सिद्दीक अकबर ना करवाते। उसने कहा अली का बेटा और जनाबे अबू बकर को सिद्दीक अकबर कह रहा है। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं तू यहाँ से उठ और चला जा मेरी बारगाह से और दोबारा नहीं आना। अबू बकर को सिद्दीक मैंने नहीं कहा है बल्कि अल्लाह और रसूल ने कहा है। जिसे अल्लाह और रसूल सिद्दीक कह दे उसे कौन हटा सकता है। मेरे अजीजों, असहाब रसूल से मोहब्बत करो, यही दीन इस्लाम का पैगाम है। अपने अमाल को सुधारो। मैंने शुरू में कहा था कि जब सारे हालात खराब हो तो उस वक्त आपको क्या करना है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। इसी आयत पर आपको अमल करना है कि हर हाल में मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, हर हाल में मेरा माबूद मेरे साथ है, हर हाल में अल्लाह उसके रसूल की रहमतें बरकतें मेरे साथ है। अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से करीब हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको अपनी बारगाह की कुर्बत अता फरमाए, ऐलान समाप्त फरमाए। आज कल परसों 3 दिन यानी जुमा, शनिचर, इतवार सुन्नी दावत इस्लामी का आलमी इज्तिमा आज़ाद मैदान वादी नूर में है। आज अभी जुमा बाद से रात 10 बजे तक औरतों का इज्तिमा है जिसमें जुमा बाद बस जाएगी। कहाँ से जाएगी? जो जिम्मेदारान है उनसे आप पूछ सकते हैं। जुमा के बाद आज़ाद मैदान औरतों के लिए बस जाएगी। अपने ख़वातीन को भेजें और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुने, अपने ईमान को ताज़ा करें। और कल ज़ुहर बाद से रात 10 बजे तक, फिर परसों पूरी रात रहता है क्या है? पूरी रात नहीं रहता है ना। इतवार को ज़ुहर बाद से रात 10 बजे तक ये इज्तिमा होगा। आप हज़रात उसमें शिरकत करें। कल और परसों 2 दिन मर्दों के लिए है, आज 1 दिन औरतों के लिए है। और आज यहाँ से आज़ाद मैदान के लिए कोई काफिला रवाना हो रहा है। सवेरा पे बस खड़ी है, आप हज़रात अपने घर के ख़वातीन को वहाँ पहुँचाएँ। और आज काफिला कोई रवाना होगा, आप उस काफिले के साथ भी आज़ाद मैदान जा सकते हैं। जो उसके ज़िम्मेदारान हैं उनसे आप राब्ता करके
قافلہ کہاں سے جائے گا، کیسے جائے گا، وہ ساری معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، نماز با جماعت کا عادی بنائے۔ حضرات گرامی، مسجد کی جھولی آپ کے سامنے آتی ہے تو کچھ حضرات جو ہے آنکھوں کو بند کیے رہتے ہیں کہ خیریت سے گزر جائے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ خیریت سے گزر جائے، خیریت سے چلا جائے، کتنا جلدی۔ یار کتنی شرم کی بات ہے، 10 روپیہ ڈالنے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ بس خیریت سے گزر جائے، خیریت سے گزر جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، اس ارادے سے 10 روپیہ ڈالو کہ اللہ اس 10 کے صدقے میں میرا 10,000 نہ جانے پائے، میرا 50,000 نہ جانے پائے۔ 10 روپیہ ڈالیے، ہفتے میں ایک دن ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ مت سوچئے، کچھ لوگ بغل والے کو دیکھتے یہ ڈالا کہ نہیں ڈالا، یہ ڈالا کہ نہیں ڈالا۔ اچھا، جب قبر میں ہم آپ سب جائیں گے تب کس کو دیکھو گے؟ اسے جواب دیا صحیح کہ نہیں دیا، یہ دیا کہ نہیں دیا، تب وہاں کس کو دیکھیں گے آپ بتائیے؟ حشر میں کس کو دیکھیں گے آپ؟ اس لیے جو آپ ڈالیں گے وہ آپ کا ہے، جو میں ڈالوں گا وہ میرا ہے، جو کوئی اور ڈالے گا اس کا ہے۔ دوسرے کو مت دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ میں نے کیا ڈالا ہے اور میرا اعمال کتنا مضبوط ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب مسجد کی جھولی جائے تو اس میں آپ ضرور ڈالیں پیسہ، خالی نہ جانے دیں۔ اور ایک اعلان اور سماعت کریں، اس کے بعد بات ختم کروں گا۔ آپ کی مسجد میں